Good morning, students. Today we will do question number 28, page 1.84, chapter 1, NPO. Is question number 28, page 1.84. Yes, in this question, from the following receipt and payment account, additional information of Ashoka Club for the year 31st March 2017, we have to prepare income expenditure account for the club for 31st March 2017 and also prepare balance sheet for this session. हमारा जो ये current session है, this is 2016 to 17. 1st April 2016 to 31st March 2017 ये हमारा current session है और for this we have to prepare balance sheet and income expenditure. Yes, receipts and payments are given here. Balance brought down 25,000 as you are seen in the question. Subscriptions for different years for 2015-16 2400, for 17 53,000 and for 18 this is 1,000. Entrance fees given 2,500, municipal grant that is 20,000, sale of furniture book value उसकी 8,000 और वो हमने 11,400 प्रॉफिट में बेचा. Similarly in the payment side, salary, newspaper bill, electricity, books, rents, furniture, all these are given. First of all we have to make opening balance sheet. 1st April 2016 से 31st March 2017 हमारा current session है. In this current session first we have to make balance sheet, opening balance sheet of 1st April 2016. So this is opening balance sheet as on 1st April 2016. Yes, in this cash is 25,000. In asset sides, this is liability. Put cash here in asset side. This is 25,000. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन स्टार्टिंग में है जो इस सेशन के शुरू में जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था, जो रुका हुआ सब्सक्रिप्शन है, जो यानी कि 2015-16 का रुका हुआ सब्सक्रिप्शन वो बैलेंस शीट में एसेट्स में हम लेंगे. तो दिस इज 3,000. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,000 रुपीज़. नाउ वैल्यू ऑफ फर्नीचर दिस इज 30,000 हमें गिवन है कि दिस इज गिवन इन थर्ड पॉइंट. क्लब ओन्ड फर्नीचर 30,000, बुक्स 14, ये हमें वैल्यूज़ गिवन है. ऑन 1st April 2016 मीन्स ओपनिंग पर हमारे क्लब के पास फर्नीचर 30,000 का और बुक्स की वैल्यू 14,000 थी. सो टेक फर्नीचर 30,000 and books amounted to rupees 14,000. Now come to liability side. Outstanding salary is still at the opening. This is given 900 rupees. ये में दे रखी है. सेकेंड पॉइंट में देखो, on 31st March 2016 सैलरी आउटस्टैंडिंग वॉज 900 रुपीज़. वो सैलरी जो अभी हमने लास्ट ईयर की पे नहीं की, तो इस सेशन की ओपनिंग में वो हमारे लिए लाइबिलिटी है. सो पुट एयर आउटस्टैंडिंग सैलरी 900 रुपीज़. नाउ मेक द बैलेंस ऑफ बोथ द साइड्स. दिस इज द टोटल ऑफ दिस 72,000 and balance is 71,100. This is opening balance, capital fund balancing figure also. Now we have already made this opening balance sheet of this session. Now we have to make income and expenditure account. So open income and expenditure account.
Yes, in this account, write your expenditures, and in this side income. Yes, see, salary already we had paid 6,000 रुपीज़. इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन. 6,000 रुपये हमने सैलरी पे की, और सैलरी एट द एंड जो आउटस्टैंडिंग थी हमारी स्टिल अभी भी जो हमने पे नहीं की, इस साल के लास्ट में जो हमने पे नहीं की, ये हमें क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट में गिवन है. ऑन 31 मार्च 2017 सैलरी आउटस्टैंडिंग 1200. हमने पे कर दी है 6,000 रुपीज़, स्टिल अभी भी आउटस्टैंडिंग है 1200 रुपीज़. तो सैलरी पेड इज 6,000 रुपीज़ प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी ले लो, दिस इज 1200 रुपीज़, टोटल इज 7,200. इन दिस जो ओपनिंग हमारे पास बिगनिंग में हमारे पास जो सैलरी आउटस्टैंडिंग थी, जो रुकी हुई थी बिगनिंग में सैलरी, जो लास्ट ईयर की कंसर्न थी, वो 900 रुपीज़ हम माइनस करेंगे. ये सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, एट एंड. ये आउटस्टैंडिंग सैलरी एट बिगनिंग, दिस इज 900 रुपीज़. Now come to other expenses. These are like newspaper, 4,100 is given, and electricity bill, this is 2,000 given in payment side. Newspaper to electricity bill, yes, newspaper it is 4,100, electricity bill 2,000 rupees, and also rent paid, this is given in 13,600 in the payment side. To rent जो हमने किराया पे किया 13,600 rupees. Now come to income side. See in the income, entrance fee we received 2,500, 2,500 रुपये हमें एंट्रेंस फी रिसीव हुई. ये रिसीप्ट साइड में हमें गिवन है. सो बाय एंट्रेंस फी 2,500, देन म्यूनिसिपल ग्रांट हमें 20,000 की मिली. वन थिंग मोर, सी द प्रॉफिट विच वी अर्न ऑन द सेल ऑफ फर्नीचर. हमारे पास बुक वैल्यू फर्नीचर की है 8,000 रुपीज़, जो हमने सेल आउट किया 11,400 में. इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन इन रिसीव साइड. बुक वैल्यू ऑफ 8,000 ऑफ द फर्नीचर इज सोल्ड एट रुपीज़ 11,400. सो प्रॉफिट बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना प्रॉफिट हुआ हमें 11,400 का हमें इसको सेल आउट किया, उसकी बुक वैल्यू थी 8,000. सो प्रॉफिट हुआ हमें इसके अंदर 3,400 का. बाय म्यूनिसिपल ग्रांट हमें मिली 20,000 की. एंड देन नाउ सी सब्सक्रिप्शन. इस करंट सेशन 2016-17 का जो सब्सक्रिप्शन है वो हमें रिसीट्स में गिवन है 53,000. ये स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, दिस इज सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस ईयर 16-17, एंड इन दिस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अभी भी हमारा इस साल के एंड में 5,400 बैलेंस है, जो अभी भी हमें रिसीव नहीं हुआ, जो हमें लेना है अभी. और ये 5,400 कैसे बना, इसकी हम एक वर्किंग नोट लेंगे यहाँ पर. स्टूडेंट्स 6,000 हमें गिवन है ऑलरेडी. As on 31st March 2017, in the first point additional information, see
दिस इज़ गिवन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2017 को सब्सक्रिप्शन हमारा 6,000 रुपीज़ ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग था. आउटस्टैंडिंग on 31st March 2017 is 6,000. Now in this 6,000, see in this 6,000, 600 जो है वो ऑलरेडी पेड हो गया. कैसे पेड हो गया? इस सेशन की शुरू में 3,000 रुपीज़ हमारे पास था पेंडिंग, जिसमें से 2,400 रुपीज़ हमें रिसीव हो गया. तो स्टिल अभी भी 600 उसमें जो पेंडिंग है वो लास्ट ईयर का है. ये जो 6,000 रुपीज़ पेंडिंग है ये पूरा अभी का भी और लास्ट का भी मिलाकर है. तो इस साल का जो पेंडिंग होगा, जो इस साल का हमारा आउटस्टैंडिंग होगा, दैट इज़ 5,400. इसमें से आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर 600 रुपीज़ हटाएंगे तो हमारे पास 5,400 आ जाएगा आउटस्टैंडिंग ऑफ 2016-17 का. 2016-17 का आउटस्टैंडिंग ये आएगा 54. तो सब्सक्रिप्शन जो है ये हमें 2016-17 का सब्सक्रिप्शन है 53,000 जो हमें रिसीव हुआ एज अ इनकम, और प्लस आउटस्टैंडिंग जो अभी हमने ये सॉल्व किया, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर दिस इज 5,400. अब इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 58,400 रुपीज़. ये इस साल का हमारा सब्सक्रिप्शन है जो इनकम एज हमारी इनकम है. नाउ सी अबाउट द FD. इन पेमेंट साइड on 1st January 2017 FD is made for rupees 40,000 at the rate of 9% per annum. 1st January 2017 को हमने एक FD करवाई 40,000 40,000 की, और इस FD के ऊपर 9% हमें रिटर्न मिलेगा 3 मंथ्स के लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च. तो 3 मंथ्स का रिटर्न हमें इस पर जो इंटरेस्ट मिलना है, और जो इसका इंटरेस्ट बनता है दैट इज़ 900 रुपीज़. तो बाय interest on FD this is 900 rupees. 3 months का रिटर्न, 3 months का इंटरेस्ट on FD, this is 900 rupees. Now make the total of this income side. Its total comes 85,200. This total also comes here in this side. This is also 85,200. Make the balance. The balance comes, which is known as surplus. So surplus 59,200. This is the surplus amount, which is income over expenditure. जी हमारे पास सरप्लस इनकम, सरप्लस फंड अमाउंट आ गई हमारे पास. अब हम लास्ट में बनाएंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017. इससे पहले हमने जो बैलेंस शीट बनाई थी दैट वाज ऑफ, किसकी थी वो? 31 मार्च 2016 की थी वो, यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट थी इस करंट सेशन की. Now students, see balance sheet. As on 31st March 2017. Now this is the balance sheet. Yes. आउटस्टैंडिंग सैलरी, अब साल के एंड में हमारी कितनी आउटस्टैंडिंग सैलरी है हमें गिवन है 1,200 रुपीज़. In liability side, this is liability side. Outstanding salary 1,200 rupees. Advance
जो सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हो चुका है वो एज अ लाइबिलिटी रहेगा, जब तक हम वो एडवांस सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट जगह हमें अभी रिसीव हो रहा है तो वो एज अ लाइबिलिटी होगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन अमाउंटेड टू ₹1000। नाउ कम टू दिस asset side. Yes, outstanding at the end of year. This is, first of all, take cash. Cash is amounted to be 7400. पहले हम कैश लेंगे 7400 आउटस्टैंडिंग। अब जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो इस साल के एंड में लास्ट में रुका हुआ है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, this is 6000 given in additional information in first point. Now see interest on FD, outstanding interest on FD 900 रुपीज़। ये हमें रिसीव नहीं हुआ अभी तक, ये हमारी इनकम है जो रिसीव नहीं हुई है, एज ए एसेट्स ये रहेगी। फर्नीचर, सी about the furniture, it is given at the beginning of the year, furniture is 30,000, also purchased 21,000 अमाउंट का हमने और परचेज किया, तो टोटल फर्नीचर हो गया हमारे पास 31,000 प्लस फर्नीचर 31,000 और 20,000। सॉरी 30,000 एंड 21,000। नाउ इसमें से हमने 8,000 रुपीज़ का फर्नीचर सेल आउट किया जो कि 11,400 में किया था, उसका प्रॉफिट हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम में दिखा दिया था। अब हमने ऑलरेडी हमारे पास स्टार्टिंग में फर्नीचर 30,000 का था, 21,000 का हमने और परचेज़ किया, टोटल 51,000 रुपीज़ का फर्नीचर हो गया, जिसमें से सेल ये परचेज़ किया था हमने और सेल हमने कितना कर दिया इसमें से 8,000 की बुक वैल्यू का हमने सेल किया इसमें से। देन वील गेट द वैल्यू ऑफ फर्नीचर दैट इज 43,000 इन एसेट साइड। नाउ सी बुक्स, अबाउट द बुक्स इट इज गिवन 14,000 वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू बुक्स की 14,000 और बुक्स हमने एडिशनल परचेज की हैं 21,200 की। तो बुक्स 14,000 प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर, कितना परचेज किया हमने ये 21,200। इट इज अमाउंटेड टू रुपीज़ 35,200। Now take this value of books 35,200 एट द लास्ट। जो हमने एफडी बनवाई थी 40,000 रुपीज़ की, वो एफडी हमारी एज एसेट्स बैलेंस शीट में रहेगी। सो फिक्स्ड डिपॉजिट अमाउंटेड टू ₹40,000 comes here. Make the total of both the sides 1,32,500. Also come to now this side. हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट, जब हमने इससे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी वहाँ पर हमारा जो कैपिटल फंड आया था 71,100 था। सो कैपिटल फंड 71,100 प्लस जो हमारे पास सरप्लस इनकम एक्सपेंडिचर से जो सरप्लस आया 59,200, वो भी प्लस किया 59,200 ऐड करने के बाद अमाउंट हो गई 1,30,300। सो टोटल ऑफ दिस साइड इज ऑल्सो 132,500। In this way this question is completed. Also the chapter is completed. Now almost सभी हमने एडजस्टमेंट्स, डिफरेंट एडजस्टमेंट्स हमने सभी क्वेश्चंस की कर लिए हैं इस चैप्टर में। अब रेस्ट विल बी स्टार्टेड टुमारो। ओके।